Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for Problem B Chess Tournament from Educational Code Forces round 113 rated for Division 2. Okay, so this is kind of medium question you can say. Okay, and firstly I will generalize the question, then I will discuss the approach and how we can build the approach for this question, and then we will discuss the code in C++. Okay, so now I am generalizing the question. We have a chess tournament will be held soon where n chess players will take part. Every participant will play one game against every other participant. Each game ends in either a win for one player or a lose for another player or a draw for both players. Okay, so most of you have already played the chess game. Okay, so if two players are playing, suppose p1 and p2. Okay, so obviously either one player will win, either he will lose, or either the game will be drawn. Okay, there are three possibilities. Fine. Now each of players has their own expectations about the tournament. They can be one of twos. Okay, so उन दोनों players की अपनी अपनी expectations हो सकती है, like किसी को जीतना है, किसी को हारना है. फाइन. तो अभी इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो एक्सपेक्टेशंस हैं हर एक प्लेयर की. ठीक है, जितने भी टोटल प्लेयर्स हैं उनकी या तो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन है या तो सेकंड टाइप. ठीक है, फर्स्ट टाइप एक्सपेक्टेशन है ए प्लेयर wants not to lose any game. Okay, not to lose any game in the sense either a player wants to win it or draw it. Okay, L नहीं होना चाहिए, either W or D, that is win or draw. Okay, second expectation is a player wants to win at least one game. Okay, तो एक प्लेयर को एटलीस्ट वन गेम जीतना ही जीतना है. ठीक है, लाइक एक ना एक विन गेम में जरूर होना चाहिए. फाइन. ओके, you have to determine if there exists an outcome for all the matches such that all the players meet their expectations. If there are several possible outcomes, print any of them. If there are none, report that is impossible. Okay, तो हमें बस इतना रिपोर्ट करना है दैट हमें क्या होगा, हमें हर प्लेयर की एक्सपेक्टेशंस गिवन है, हमें बस इतना रिपोर्ट करना है कि करंट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो भी मैचेस हैं वो फुलफिल एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो सकते हैं या नहीं. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा हमें. तो फर्स्ट थिंग क्या है, इनपुट देखते हैं. इनपुट में हमें टी गिवन है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, देन नंबर ऑफ चेस प्लेयर्स. कंस्ट्रेंट तुम लोग देख रहे होगे बहुत छोटे. ठीक है, लाइक वी कैन गो फॉर एन क्यूब अप्रोच ऑल्सो, एन क्यूब एन रेस 4 अप्रोच ऑल्सो. ठीक है, तो हम जितना भी ब्रूट हो सकता है उतना ब्रूट सॉल्यूशन दे सकते हैं. एंड इन द सेकेंड लाइन वी हैव अ स्ट्रिंग which consists of 1 and 2. Okay, if si is equals to 1 then ith player has expectations for the first type. Okay, अगर i की si की वैल्यू 1 है, इट मीन्स जो ith प्लेयर है, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन फर्स्ट टाइप की है, दैट इज ही डजंट वांट टू लूज एनी ऑफ द गेम. फाइन. अदरवाइज उसकी एक्सपेक्टेशन सेकेंड टाइप की है. फाइन. तो अब हमें आउटपुट कैसे देना है ये देखते हैं. आउटपुट का फॉर्मेट भी अच्छा था इस क्वेश्चन का. ठीक है, so in the first line print no if it is impossible to meet the expectations of all the players. Fine. Otherwise print yes and the matrix of size n cross n. Fine. तो हमें आउटपुट में क्या देना है, एक मैट्रिक्स ऑफ साइज n क्रॉस n. ओके, वेयर n जो है वो नंबर ऑफ प्लेयर्स है. फिर a of ij, matrix of ij will be plus if ith player won in the game and jth player lose the game. Okay, सपोज तुम ये वाला शेल की बात कर रहे हो और ये शेल कौन सा हो जाएगा तुम्हारा 2-1. ठीक है, तो अगर 2 जीतता है तो यू कैन मेक दिस एज प्लस. ओके, अगर 2 जीतता है, बट डोंट फॉरगेट टू मेक दिस शेल एज माइनस. ये चीज यहाँ की हाईलाइट थी इस क्वेश्चन की. ठीक है, बिकॉज तुमने कौन सा मैच लिया, 2 और 1 का. ओके, 2 और 1 के मैच में अगर 2 जीत रहा है तो 1 हार भी रहा होगा. And if ith player loses in the game against jth player then you have to make it as minus. ठीक है, तो अगर ये प्लेयर 2 यहाँ पे जीत रहा है तो तुम्हें ये वाला शेल दैट इज माइनस भी बनाना पड़ेगा उसके करेस्पॉन्डिंग ही. ठीक है, ये कौन सा शेल है तुम्हारा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके करेस्पॉन्डिंग. तो ये इस क्वेश्चन की एक वन ऑफ द हाईलाइट थी यू कैन से. ठीक है, कि अगर 2-1 तुम प्लस बना रहे हो तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो ऑपोजिट सेल है, आई जे के करेस्पॉन्डिंग कौन सा सेल, जे आई,
तुम उसको डायरेक्टली माइनस बना सकते हो, तुम्हें माइनस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना है, ठीक है। फाइन। थर्ड केस इज ए ऑफ आई जे या फिर आंसर ऑफ आई जे कैन बी इक्वल, ठीक है। इक्वल का मीन्स इफ आई एंड जे प्लेयर्स गेम रिजल्टेड इन अ ड्रॉ, अगर आई और जे के बीच में मैच ड्रॉ हुआ है, एंड सिंपली एक्स इफ आई इज इक्वल्स टू जे, अगर सेम प्लेयर है मैट्रिक्स में, दैट इज डायगोनल, हमें पूरा का पूरा डायगोनल क्या रखना है, क्रॉस, दैट मीन्स इन दोनों प्लेयर्स के बीच मैच पॉसिबल नहीं है, ओके फाइन। सो नाउ अब कुछ हाईलाइट्स देखते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो फर्स्ट हाईलाइट है अ प्लेयर वांट्स नॉट टू लूज एनी गेम, ओके। इसका मतलब सिंपली क्या हो रहा है, फर्स्ट केस का मतलब क्या है कि हमारा ये जो प्लेयर है यहाँ पे जो जो मतलब एक स्ट्रिंग हमें गिवन है एस, है ना, और एक स्ट्रिंग में हमें हर प्लेयर की एक्सपेक्टेशंस गिवन है, ठीक है। सपोज इसकी इसकी ठीक है, इन सब प्लेयर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है 1, ठीक है। तो आई कैन सिंपली से कि इनका मैच जिस जिसके साथ भी हो रहा होगा, ठीक है, वांट नॉट टू लूज एनी गेम, ये सारे प्लेयर्स कभी भी हार नहीं सकते, ठीक है। इधर इन वाले शेल्स में या तो प्लस आ रहा होगा या फिर इक्वल आ रहा होगा, ठीक है, माइनस आ ही नहीं सकता, फाइन, ओके। अब इन सारे प्लेयर्स का मतलब क्या है, सपोज इनका जो शेल है, मैं शेल लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इनको लेके जितने भी मेरे 2D मैट्रिक्स में सेल बन रहे हैं वहाँ पे इधर प्लस आएगा इधर ये आएगा, ठीक है, इन दोनों के अलावा माइनस नहीं आ सकता, दैट इज फाइन। तो अब इनको लेके कौन कौन से शेल बन सकते हैं, 0 2 0 3 0 4 0 5, ठीक है। इन सारे शेल्स में ऑलवेज इधर प्लस या फिर ये, और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है फाइन। तो ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं कि जितने भी ये वाले शेल्स हैं इनको लेके हम इन सारे शेल्स को या तो प्लस या तो ये इससे ही भरेंगे, है ना, फाइन। सेकेंड केस देखते हैं। अभी तो हमारे पास फर्स्ट केस को लेके एम्बिग्यूटी है, लाइक प्लस से भरें या इक्वल से भरें हमें पता नहीं है, ठीक है। तो लेट्स गो टू सेकेंड केस। अ प्लेयर वांट्स टू विन एटलीस्ट 1 गेम। अब यहाँ से हमारा कुछ क्लियर हो सकता है, ठीक है। सपोज तुम्हारी कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग थी और इस स्ट्रिंग में 0 1 2 3 4 5, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा था 1 2 1 1 1 1, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो प्लेयर है इस प्लेयर को एटलीस्ट 1 गेम जीतना ही जीतना है, ठीक है। एटलीस्ट 1 गेम जीतने का मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ पे जीतेगा एक गेम तो कोई एक प्लेयर एक गेम हारेगा भी, फाइन, एक गेम हारेगा, ओके। तो अब ये वाला प्लेयर जो है ये जीतेगा एटलीस्ट 1 गेम, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक W लगाते हैं तो बाकी जो बचे हुए प्लेयर हैं दैट इज 0 2 3 4 5, इनको एक ना एक गेम हारना पड़ेगा, बट इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये एक भी गेम हारेंगे नहीं क्योंकि इन सब में तो 1 है ऑलरेडी, ओके। तो ये केस क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, कि अगर मेरे पास एक सिंगल 2 है, फाइन, जो कि मेरा एक अकेला प्लेयर है जिसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे एक गेम एटलीस्ट जीतना है, ठीक है, इसके साथ मेरे सारे के सारे क्या है 1 है, ये केस मेरा एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये केस मेरा एक बेस केस है, यू कैन से बेस केस फॉर आंसर नो, बिकॉज इन एनी केस कॉन्ट्राडिक्शन में मेरा आंसर क्या रखना है मुझे, नो, जब हमारा ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है बनाना। और वो कौन सा केस हो जाएगा, ये वाला केस, जब मेरे प्लेयर को एक सिंगल प्लेयर को एटलीस्ट 1 मैच जीतना है बट बाकी सारे प्लेयर्स में क्या है उनको वो मैच जीतना ही उनको कोई भी मैच हारना नहीं है, ठीक है। तो ये एक केस हो गया कॉन्ट्राडिक्शन मेरा। अब सपोज इसके साथ मेरा एक और प्लेयर आ जाता है, ठीक है, जो अब अगर सारे के इस 2 के साथ, सपोज ये 2 था मेरा जिसको एटलीस्ट 1 विन चाहिए थी, ठीक है, और बाकी सारे प्लेयर्स क्या थे 1 थे,
तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन था, ठीक है। तो इस 2 के साथ आई कैन से कि मैंने एक और 2 कहीं पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास 2 2s हैं, फाइन, और बाकी सारे क्या हैं, 1 है। अब देखते हैं क्या चीज़ है, अब अभी भी कॉन्ट्रडिक्शन है क्या, ये देखते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो प्लेयर है इसको एक विन चाहिए, इस प्लेयर को भी अब एक विन चाहिए होगी क्योंकि ये भी 2 है, ठीक है, फाइन। तो ये जो प्लेयर है, ठीक है, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेयर 1, ये किसके खिलाफ मैच खेले, ये किसके अगेंस्ट मैच खेले और जीत जाए, हमें ये देखना है, ठीक है। तो ये इसके खिलाफ नहीं खेल सकता, इसके खिलाफ नहीं खेल सकता, इसके खिलाफ नहीं खेल सकता, ठीक है, इसके खिलाफ भी नहीं, इसके खिलाफ भी नहीं। अभी ये किसी भी 1 के अगेंस्ट मैच नहीं खेल सकता, ठीक है। अभी हमने 2 की बात नहीं की, अब 2 की बात करते हैं। सपोज मैंने ये बोला कि ये जो 1 है, ठीक है, ये जो प्लेयर 1 था, ये मेरा क्या करेगा, इसके अगेंस्ट मैच खेलेगा और ये मैच जीत जाएगा, ठीक है, राइट नाउ, और उसे एक ये सिंगल विन जो वो डिज़ायर थी वो उसकी पूरी हो जाएगी, ठीक है, ओके। बट नाउ जब मैं प्लेयर 3 के पास आऊँगा, इसको भी एक सिंगल विन चाहिए, ये दिन किसके साथ मैच खेलेगा, यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी आ जाएगी, है ना। तो यू कैन ईजिली से कि जब मेरे पास 2 2s होंगे, मेरी स्ट्रिंग एस में 2 2s है, यहाँ पे भी मेरा एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और अभी तक आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, हमें एक प्लेयर को एटलीस्ट सिंगल विन देनी है अगर वो वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू 2 है, अब मैं फाइनल अप्रोच बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई वैल्यू 2 है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक दूसरी वैल्यू 2 चाहिए ही चाहिए, ओके फाइन, एक दूसरी वैल्यू 2 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो 2 है ये 1 के साथ मैच खेल के अपनी विन रजिस्टर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको, इस 2 प्लेयर को, ये कोई भी IX प्लेयर है सपोज, ठीक है, तो इस IX प्लेयर को एक विन रजिस्टर करने के लिए जो उसकी डिज़ायर है, ठीक है, उसको एक एटलीस्ट 1 2 चाहिए ही चाहिए, फाइन। बट जो अब ये दूसरा है, ओके, इस 2 को भी, सपोज ये I+1H प्लेयर है, इस 2 को भी कोई एक और दूसरा 2 चाहिए जिसके अगेंस्ट ये मैच खेल के विन रजिस्टर करेगा, ओके। तो ये I+2H2 या फिर I" होना चाहिए, इसको I' बनाओ, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरे पास 3 2s होने चाहिए, ये चीज़ तुम लोग को चमक गई होगी आई होप, फाइन। अब ऐसा हुआ क्यों, इस चीज़ का मैंने पूरा यहाँ पे ऊपर कंक्लूजन बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास खाली 2 2s होते तो ये जो 2 था ith प्लेयर, ये इस 2 के साथ खेल के तो जीत जाता, लेकिन जो I' प्लेयर है ये किसके साथ खेल के जीतता, ये अगेन इसके साथ, तो ith प्लेयर के साथ तो हार चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस I' प्लेयर के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक I" चाहिए जो इसके साथ जीतेगा, ठीक है। अब इस I" के लिए हमें क्या चाहिए, ये क्या कर सकता है, ये सिंपली इसके साथ खेल के एक मैच जीत सकता है, ठीक है। तो वाई वी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 2s, सो दैट जो हमारे I' और I" के जो करेस्पॉन्डिंग मैचेस हों, ठीक है, वो मोर देन 2 मैचेस हों, ठीक है। इसका मैच हो जाएगा एक, फिर इसका एक मैच हो जाएगा, और इसका एक मैच हो जाएगा, है ना। तो एटलीस्ट सबको एक एक 1 विन मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर वहीं पे I और I' ही होता तो एक सिंगल मैच ही होता, और सिंगल मैच में हम खाली एक प्लेयर को विन दे सकते हैं, दूसरे को लूज ही देना पड़ेगा, दैट्स वाई, ओके फाइन। तो मेरी एक कंडीशन मुझे मिल गई कि अगर स्ट्रिंग S में 2 अवेलेबल हैं तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2s मस्ट बी ग्रेटर देन 2 इफ हैं, फाइन, ओके। नाउ मैं ऑब्वियसली अब मेरी बात आई, ये तो मेरा हो गया कि मुझे नो कंडीशन कैसे निकालनी है, ठीक है, कि आंसर मेरा नो कब होगा। अब मुझे फाइनली अपना आंसर फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ येस, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा वो देखते हैं,
ठीक है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट वन इनिशियली, मैं वन के बारे में बात कर रहा था। जहां जहां पे जिस भी केसेस में मुझे वन मिल रहे हैं उस केसेस में मैं ऑलरेडी क्या कर सकता हूँ, सिंपली ड्रॉ करा सकता हूँ मैचेस को। ओके, या फिर ड्रॉ या फिर विन। तो विन का अभी हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, अभी हम ड्रॉ की बात करते हैं, क्योंकि ड्रॉ जो है वो हमेशा एक एफिशिएंट सॉल्यूशन है, यू कैन से। वाई, तुम कभी भी अगर इस प्लेयर का, सपोज मैं ith प्लेयर जीरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 0th प्लेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक, तो मैंने क्या किया, अगर इसको मैंने विन करा दिया तो इस विन के करेस्पॉन्डिंग मैंने किसी आई डैश प्लेयर को लूज कराया है, ठीक है। और अगर मैं किसी और प्लेयर को लूज करा रहा हूं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा वो फिर ये वाला केस डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि जहां पे भी वन है उस प्लेयर के लिए ऑलवेज ड्रॉ एक बेटर ऑप्शन है। ओके फाइन। तो दो केसेस मैंने अभी तक पढ़ लिए कि मुझे नो किस केस में आंसर देना है और ड्रॉ मेरा एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है फाइन। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ और तुम लोगों को और अच्छे से फाइनल अप्रोच समझा देता हूँ, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन बिल्ड कैसे करने वाला हूँ ये देखते हैं। तो सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स थी, ठीक है, डायगोनल में मुझे क्या देना है, सिंपली डायगोनल में मुझे सिंपली एक्स 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 भरना है, ठीक है फाइन। अब मेरे पास सपोज एक स्ट्रिंग थी जिसमें था 1 1 और 1 1। अगर मेरा ऐसा केस है जब नंबर ऑफ 2 0 है, एक भी नहीं, ठीक है, तो इस केस में मैं सिंपली क्या करूँगा, हर जगह मैचेस ड्रॉ करा दूंगा, सारे के सारे मैचेस ड्रॉ, क्योंकि किसी की जीतने की इच्छा ही नहीं, किसी की मतलब एग्जैक्टली जीतने की इच्छा है ही नहीं, सबको बस इतना चाहिए कि वो हारे ना, तो मैं सारे मैचेस ड्रॉ करा दूंगा, ठीक है फाइन। सपोज सेकंड केस मेरा कब आता है, जब मेरे इसमें ऐसा होता है, ठीक है, इस केस में मेरा आंसर सीधे नो हो जाएगा, ठीक है। एक केस आता है मेरा जब ऐसा होता है 1 और 2 2, इस केस में भी आंसर नो। थर्ड केस मेरा क्या आता है, ऐसा मोर देन 2 2s हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जहां पे भी मुझे 1 मिला है मैं उस सारे केसेस में तो क्या कर दूंगा, मैचेस ड्रॉ। और जैसे ही मुझे 2 मिला है, ठीक है, मुझे यहाँ पे सपोज ये कौन सा इंडेक्स था, ये सेकंड प्लेयर था, ठीक है। अब मुझे सेकंड प्लेयर के लिए एटलीस्ट एक विन चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सेकंड प्लेयर से लेके अपने बाकी सारे टूज में इटरेट करूँगा, ठीक है। अपनी स्ट्रिंग में सेकंड प्लेयर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक विन तलाश कर रहा हूँ, और उस विन को तलाश करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, जो प्लेयर टूज हैं मैं उन्हीं के साथ एक विन दे सकता हूँ, एग्जैक्टली ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर तुम लोगों को, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं बची हुई पूरी स्ट्रिंग में इटरेट करूँगा, ठीक है। और जैसे ही मुझे कोई एक प्लेयर मिला जिसकी वैल्यू 2 है, मैं सिंपली क्या करूँगा, आई और जे में क्या कर दूंगा, इसको विन दे दूंगा, और जे और आई को क्या कर दूंगा, लूज दे दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस मुझे ये चीज़ समझनी थी कि मुझे नो किस केस में आंसर देना है, एंड दैट केस विल बी जब मेरे नंबर ऑफ टूज 1 या 2 होंगे, सिंपली, ठीक है। तो नाउ आई एम शोइंग यू द कोड ऑफ द क्वेश्चन। ये रहा कोड, मैंने स्ट्रिंग इनपुट ली, मैंने काउंट लिया, काउंट में जहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ टूज काउंट किए, अगर वो 1 या 2 है तो मैंने सिंपली आंसर नो दे दिया और कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अदरवाइज हर केस में मेरे पास एक आंसर रहेगा, ठीक है। फिर मैंने अपने कैरेक्टर एरे में इटरेट किया, और जब भी डायगोनल एलिमेंट है तो एक्स बना दिया। एल्स में मैंने क्या कर दिया, मैच को इनिशियली ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ क्यों किया ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि ड्रॉ विल ऑलवेज बी अ बेटर केस देन अ विन, ठीक है। फिर मैंने सिंपली क्या किया, अपनी स्ट्रिंग में इटरेट किया, और जहाँ पे भी मुझे वैल्यू 2 मिल रही है, इट मीन्स कि मुझे अब ith प्लेयर को एटलीस्ट 1 मैच देना है विन के लिए, ठीक है। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, बाकी स्ट्रिंग में इटरेट करूँगा। अब यहाँ पे एक हाईलाइट है, बाकी स्ट्रिंग में इटरेट करने के लिए मैंने लूप कहाँ से कहाँ तक, i+1 से i+n तक चलाया है, ठीक है। तो ये सिंपली ऐसी सी चीज़ है, तुम इसमें कंफ्यूज मत होना। सपोज मैं इस ith प्लेयर के लिए अभी एक वैल्यू ढूंढ रहा था, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, i+1 यहाँ से लेके पूरी स्ट्रिंग ऐसे इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में।
तो i+1 से लेके n+i तक चलाया, और j में देख लेना, यहाँ पे j में मॉडुलो n ले लिया मैंने, तो इस चीज़ में भी कंफ्यूज मत होना। मॉडुलो n इसलिए ताकि मैं आउट ऑफ बाउंड ना हूँ, ठीक है, जब इस इंडेक्स के आगे जो नेक्स्ट इंडेक्स आए वो यहाँ से शुरू हो जाए, तो वो इसलिए था, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और जब भी मुझे कोई एक दूसरा प्लेयर मिलता है जिसकी वैल्यू 2 है, मैं बस उसी प्लेयर के साथ अपने करंट आई प्लेयर का मैच करवा दूंगा, और आई और जे को, देखो आई और जे को मैंने सिंपली क्या किया, प्लस बना दिया, और जे और आई को मैंने सिंपली क्या किया, माइनस बना दिया, ठीक है, और वहीं पे अपना लूप ब्रेक कर दिया, और फाइनल आंसर मैंने अपनी स्ट्रिंग आउटपुट दे दी। So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt, you can just ask me in comment section and I will explain you in brief again. Thank you guys for watching. Like this video and subscribe this channel.